आप सभी को आत्मवंदन। और आज हम डे 2 की प्रैक्टिस करेंगे। और आज किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के ऊपर हाथ से हम काम करना शुरू करेंगे। तो आज एक कोई ऐसा रिश्ता जिन व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ में या तो आपका कुछ अनबन है या आपका मन खराब या खट्टा है, या फिर आपने जाने अनजाने में किसी दूसरे को कोई दुख पहुंचा दिया और उसका आपको आपको गिल्ट फील हो रहा है। लेकिन आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप वहां जाके उनसे माफी नहीं मांग सकते, या आप उनको समझा नहीं सकते कि किस रीजन से हम ये चीज हुई थी। तो आज हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए एचपीपी की प्रेयर करेंगे और अपने वो सारे जो फॉरगिवनेस है वो फॉरगिवनेस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में सोचना है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको गाइड करती जाऊंगी, आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद उस व्यक्ति को विजुअलाइज करते हुए हम 108 बार, पहले तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और फिर 108 बार हो पोनो पोनो की प्रेयर करेंगे। और उसके बाद में ईएफटी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि हम रेडी हैं। चलिए। तो नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन and breathe out. Take another deep breath in and out. Breathe in and out. नाउ सबसे पहले आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, उनका नाम और उनकी इमेज को अपने माइंड में लेके आएंगे। आइस क्लोज करके उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेते हुए आपको मन ही मन में, या मेरे साथ में ये चीज दोहरानी है। मैं अपना नाम लूंगी, आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। डियर मृदुल, मैंने कभी भी अपने मन, वचन, कर्म या वाणी से आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है, तो मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। या आपने मुझे कभी अपने मन, वचन या कर्म से जो भी तकलीफें दी हैं, मैं उसके लिए आपको माफ करती हूँ और अपने सारे कर्म बंधनों को खत्म करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट। अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखेंगे और एक बहुत लंबी गहरी सांस लेके मुंह से उसे छोड़ेंगे। वन मोर डीप ब्रीथ इन एंड आउट। नाउ अपने हैंड्स को रब करेंगे अपनी आंखों में, क्राउन चक्र, बैक ऑफ नेक, फ्रंट विशुद्धि चक्र और अपने हार्ट पर रखेंगे। एंड विथ स्माइल प्लीज ओपन योर आईज। थैंक यू। नमस्कार विजयलक्ष्मी मैम, आत्मवंदन। हेलो आराध्या। यस। तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज से हमने मैम स्टार्ट किया है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए, एक किसी पर्सन के लिए आज से हम ये टेक्निक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिससे कि हमारे कर्म बंधन बंधे हुए हैं और उनसे रिश्ते हमारे अच्छे नहीं हैं, या उनको हमसे प्रॉब्लम है या हमको उनसे प्रॉब्लम है, हमको नहीं पता कि एक्चुअल में कौन सही है कौन गलत है। तो हमने ये यूनिवर्स पे छोड़ दिया और उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हमने उनका नाम लेकर और उनके लिए ये आज 108 बार प्रेयर करी है। सो इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे ईएफटी टैपिंग पे। तो टैपिंग के लिए सबसे पहला रूल होता है कि हमको एक पर्टिकुलर इमोशंस को आइडेंटिफाई करना होता है। तो आई होप कि हम सबके अंदर दो इमोशंस बहुत कॉमन है। शायद मैं सही हूँ, शायद मैं गलत हूँ। तो एंगर हमारे अंदर ऑटोमेटिक है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए होता हो, कभी भी अचानक से आ जाता है। और कभी भी अचानक से हम किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं या खुद से ही दुखी रहते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। तो एंगर और नाराजगी, ये दो चीजें जो है वो कॉमन है, जो हमको लोगों से प्रॉब्लम होती है या लोगों को हमसे प्रॉब्लम होती है। तो आज हम पर्टिकुलर एंगर और नाराजगी यानी गुस्सा और नाराजगी, इन दो चीजों को लेकर ईएफटी टैपिंग करेंगे। और ईएफटी टैपिंग से वो पर्टिकुलर इमोशन हमारे यहाँ हमारी बॉडी में जहां पर भी स्टक है, वो इमोशंस हम रिलीज करेंगे। तो जैसे कि कल हमने बात की थी कि ईएफटी टैपिंग के लिए सबसे पहले हमको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि हम जो भी चीजें हमारे अंदर इमोशंस आ रहे हैं, जो भी इमोशंस हम फील कर रहे हैं, चाहे वो सामने वाले के कारण कर रहे हैं या अपने खुद के कारण कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी ही चॉइस है और हम उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आई थिंक वी ऑल आर रेडी फॉर दैट कि हेलो विभा जी, वेलकम, कैसे हैं? या सो आज हम स्टार्ट कर रहे थे। हाँ विभा जी, कुछ बोल रहे हैं आप? ना, ठीक है, पक्का। चलिए। तो ईएफटी टैपिंग के लिए सबसे पहले हमको आ, अपने स्पेक्स वगैरह निकालने होते हैं क्योंकि हमको टैप करना है इसीलिए। और दूसरी चीज, सीक्वेंस आप मुझे देख के मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसी सीक्वेंस के साथ में अगर आपको, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स बोलूंगी, कई बार ऐसा होगा कि हमको नहीं समझ में आएगा कि ये सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, या कुछ सेंटेंस छूट भी जाएंगे। मैटर नहीं करता हिंदी है इंग्लिश है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई लैंग्वेज से नहीं गवर्न होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी भाषाओं को एक ही लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में समझ जाता है। तो हमको कोई टेंशन नहीं है इस चीज का। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं कराटे चॉप से। राइट। तो कराटे चॉप से हम स्टार्ट करेंगे और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करके अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। 3 डीप ब्रीथ करेंगे और डीप ब्रीदिंग में आपकी स्टमक बाहर आना चाहिए। तो आपको अपनी स्टमक से ब्रीदिंग करनी है। ब्रीथ इन एंड आउट 3 टाइम्स करके फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। यस।
So gently close your eyes, relax your body, and take a deep breath in and out. Breathe in and out. One more deep breath in and out. नाउ हम कराटे चॉप से स्टार्ट करेंगे, 2 फिंगर यहाँ लेके। इवन दो मुझे बहुत गुस्सा और नाराजगी महसूस हो रही है, बट आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं इस नाराजगी को अपने अंदर दबाए हुए हूँ और मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ, और मैं इसे छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इवन तो मैंने बहुत सारा एंगर, बहुत सारी नाराजगी बहुत लंबे समय से अपने अंदर दबाई हुई है। नाउ मैं चूज करती हूँ उसको रिलीज करने के लिए। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। नाउ स्टार्ट विथ योर, बिकॉज मैं इतने सारे इमोशंस, पेन को जमा करके अपनी रातों को चिंता में जागकर या फिजिकल पेन के रूप में जी रही हूँ। इस एंगर के कारण मैं बहुत भारी फील कर रही हूँ। मेरे अंदर दबा हुआ गुस्सा और नाराजगी मेरी शांति और लव को ब्लॉक कर रहा है। मैं इस एंगर और नाराजगी को लेट गो करती हूँ। मैं खुद को फ्री करती हूँ। अभी इन इमोशंस को रिलीज करती हूँ, क्योंकि मैं पीस को चूज करती हूँ और मैं एंगर को रिलीज करती हूँ। नाउ आई एम फीलिंग इन पीस। आई एम इन पीस नाउ। आई रिलीज ऑल माई एंगर, all my resentment. मैं पीस ऑफ माइंड को चूज करती हूँ। मैंने अपने अंदर से सारे एंगर को रिलीज कर दिया है, सारी नाराजगी को रिलीज कर दिया है। मैंने अपने अंदर की हेल्पलेसनेस को रिलीज कर दिया है, और मैं बहुत पीसफुल फील कर रही हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप्स में हार्मनी को वेलकम करती हूँ। मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करती हूँ, लव करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ जिस तरीके की भी मैं हूँ। आई लव माई सेल्फ। आई डीपली लव, रिस्पेक्ट एंड love myself as the way I am. I love myself and everyone else around me. मैं खुद को और अपने आसपास के सभी लोगों को एक्सेप्ट करती हूँ। I am free from anger. I am free from resentment. I release all my anger, all my. I love, honor, and accept myself as the way I am. I am ready to receive love. All is well in my world. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you.
I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now take a deep breath in एंड अपने मुंह से जब ब्रीद आउट करेंगे तो सारा एंगर आप रिलीज कर देंगे. नाउ वन मोर डीप ब्रीथ इन. रिलीज योर एंगर. आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा सब रिलीज कर दीजिए. वन मोर डीप ब्रीथ इन एंड आउट. सारा एंगर, एंजाइटी और टेंशन रिलीज कर दीजिए. नाउ क्लोज योर आईज एंड सी. आपके अंदर की सारी निगेटिव एनर्जीज बाहर निकल गई हैं और आपके क्राउन चक्र से यूनिवर्सल लाइट, गोल्डन लाइट जो आपके अंदर पूरी तरह से समाती चली जा रही है. मुस्कुराते हुए उसको एक्सेप्ट करिए. अपने अंदर हो रहे छोटे से परिवर्तन को स्वीकार करिए. खुश होइए. और जब भी आपको अच्छा लगे हैंड्स रब करिए और अपनी आंखों में रखिए. अपनी आईज ओपन कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. ओके. आई होप definitely this will help you a lot because जब हम कोई भी EFT टैपिंग करते हैं उसमें वर्ड्स मैटर नहीं करते. केवल हमारी फीलिंग्स मैटर करती हैं और कि हम अपने अंदर कैसा फील कर रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ड्स और सेंटेंसेस सारे इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि जब मैं आंख बंद करके बोलती हूँ तो मैं कुछ और सोच रही होती हूँ, कुछ बोल रही होती हूँ. बट या डेफिनेटली जब हम टैप कर रहे हैं वो टैप हमारा पूरा रिलीज करता है. तो बी वेरी गुड फॉर कि हम उसको करते रहें. नाउ द लास्ट पार्ट इज ग्रेटिट्यूड. अब एक पर्सन को लेके हम ये पूरा सीरीज लेके चल रहे हैं. स्टार्टिंग में हमने उस पर्टिकुलर पर्सन से माफी मांगी थी और उनको माफी दी थी. शायद हम हर्ट हुए हो, शायद सामने वाला हमसे हर्ट हुआ हो. दोनों ही कंडीशन. नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमने हमारे जो इमोशंस इतने समय से स्टक करके रखे हुए थे जो कि नाराजगी वाले और एंगर वाले, आज हमने ये दो लिए. इसको हमने टैप करके रिलीज करने की कोशिश करी. नाउ द थर्ड पार्ट इज ग्रैटिट्यूड. अगर हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो ये हमारी सीरीज आधी अधूरी रह जाएगी कि हमने उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया. तो अगर आपका पेन और पेपर रेडी है तो आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए 3 ग्रैटिट्यूड मस्ट लिखिए, जरूर लिखिए. ग्रैटिट्यूड लिखने का तरीका हम सबको पता है. हमने बहुत सारी ग्रैटिट्यूड राइटिंग करी है तो आई होप कि आप सबको पता होगा कि हमको ग्रैटिट्यूड कैसे लिखना है. पीसफुली, कामफुली हमको आराम से बैठ के. और अगर उस व्यक्ति की फोटोग्राफ है वो बहुत हेल्प करती है, और अगर नहीं है तो आप जब भी ये प्रैक्टिस करें उस व्यक्ति को अपने आंख के सामने आईज क्लोज करके विजुअलाइज करें. उसके साथ में कनेक्शन बनाए और फिर आईज ओपन करके उसके लिए अच्छी ही बातें आपको लिखनी है. भले उसने आपको कितना भी हर्ट किया है और आप उससे ऊपर बहुत गुस्सा हो, स्टिल यू हैव टू राइट अ नाइस वर्ड्स फॉर हिम और हर. ठीक है. तो आपको अच्छे वर्ड्स ही लिखने हैं उसके लिए. जैसे कि आप लिख सकते हैं कि आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि
तुमने मुझे आगे बढ़ने के लिए हेल्प की। और आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि हम साथ में उस दिन उस समय वहां पर कॉफी पी रहे थे, और हमारे बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, बात हुई थी, उससे मेरा दिन बन गया था। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस आपको तीन याद करने हैं और उनके लिए अच्छा ही लिखना है और अच्छे भाव से लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीन बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जरूर लिखना है। और राइटिंग इज मैंडेटरी, ओके, तो यू हैव टू राइट डियर, और आप पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आप वो सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखेंगे। मैंने तो अभी तीन ही लिखी है, एंड मैं क्योंकि बहुत यूज टू हूँ लिखने की, तो बहुत जल्दी जल्दी वर्ड्स और सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो आई होप कि मिनिमम तीन तो आपने जरूर लिखी होगी। अब मैक्सिमम आप जितनी ज्यादा लिख सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से अगर आप एक पूरा फुल पैकेज में किसी भी व्यक्ति के लिए या परिस्थिति के लिए, मैंने दोनों के ऊपर यूज करके देखा है। अ, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके साथ हमारे बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, और हम उनसे हर्ट हो जाते हैं या वो हमसे हर्ट हो जाते हैं, और रिश्ता हमारा कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव उसमें चला जाता है, और हम उस बोझ को ढोते रहते हैं। तो उस बोझ को ढोना बहुत बड़ा एक गलत तरीका होता है अपने आप के साथ में, सेल्फ के लिए। तो हम आज से अपने आप को हील करके अपने साथ में अपना रिश्ता बहुत अच्छा करने के लिए एचपीपी कर रहे हैं, ईएफटी कर रहे हैं और ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। और ये तीन चीजें करके हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अपने ग्रजेस, हमारे कर्म बंधन है, जो बंधन हमको अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होंगे 101%, हम उन कर्म बंधनों को काट रहे हैं। और आफ्टर कंप्लीटिंग 21 डेज हम उनको कॉर्ड कटिंग कर देते हैं। पहले तो 21 डेज तक हमको हील करना होता है, और उसके बाद कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग मतलब उसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर रहे हैं, हम कॉर्ड कटिंग से उन बंधनों को, जिसको हमने इतने लंबे समय से कैरी किया हुआ था, उन बंधन को काट के अलग कर देंगे कि अब वो हमको आगे की लाइफ में या अभी की हमारी फ्यूचर वाली लाइफ में हमको परेशान ना करे, और हम उनको रिलीज कर दें। तो कर्म बंधनों के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, हम उसके लिए बाद में बात करेंगे। तो आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। एनी शेयरिंग इफ यू वांट टू आस्क, इफ यू वांट टू से प्लीज, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे या फिर सी हम इसको 3 दिन कंटिन्यू करेंगे, यानी हमने कल से किया था, हम 14th तक इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 15 ऑनवर्ड्स हम बहुत डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस पे जाएंगे इसीलिए। क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि है, और उस दिन होता ही है वो दिन रिलीजिंग का। जो महादेव होते हैं वो बहुत औसम और बहुत डिवाइन शक्ति है, और वही शक्ति है जो सारी हीलिंग और रिलीजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस दिन को बहुत अच्छे से यूज करना है। नथिंग, कोई भी क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, रोशनी जी बोलिए। जी मैम, जब मैं कर रही थी इसको शुरुआत में, तो
मेरे सिर में ना अचानक से एकदम अजीब सा लगने लगा था मैम, थोड़ा भारीपन टाइप से। और करने के बाद वो पूरा खत्म हो गया, कहाँ चला गया जादू से पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हल्का लग रहा है। ये हाँ, ये बहुत अच्छी चीज होती है। जितनी भी चीज होंगी ना वो बहुत डिवाइन होगी। और ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, ये पता चलने लगेगा। मतलब ये अगर एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है, और अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, हम बस इसको एक फॉर्मेलिटी जैसा कर रहे हैं, ऐसा होना होता है बेसिकली। लेकिन जब हम डूब जाते हैं ना, तो डूबने से या फेथफुली करने से उसका फर्क पड़ता है। यस, तो ऑल डन। या हाँ जी मैम, पूनम जी प्लीज बोलिए। जी विजयलक्ष्मी मैम। हाँ जी। यस, आपने बताया ना वर्ड्स में ताकत है। हम तो मृदुल जी के मधुर वर्ड सुनने के लिए ही भाग कर आते हैं, नहीं और नहीं उसमें मैम। इतनी ताकत है, जहां भी जाओ वो कान में गूंजता ही रहता है। नहीं मैम, अब मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आप लोगों की ना भावनाएं हैं, बाकी कुछ नहीं। मैं जो बोलती हूँ सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में वो टेप हो गया है। जब भी आवाज आती है ना तो गूंजता ही रहता है। घुसता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, लाइक थैंक यू। हाँ जी, पूनम जी आप कुछ बोल रहे थे प्लीज। हम्म। आत्मवंदन आप सभी आत्मवंदन को। जी। हाँ जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मतलब आज सुबह से मतलब बहुत पता नहीं क्यों अजीब सा, मतलब सन्नाटा, अजीब सा स्ट्रेस था सुबह से। बिल्कुल से तो अभी मैंने अचानक ही देखा कि आपको ऐसे ज्वाइन कर लिया। और अरे मतलब काफी मतलब मिला, मतलब मुझको मतलब बहुत अच्छा लगा। ये सब ये नहीं कि मतलब जानते नहीं या वो नहीं करते हैं, ये सब पढ़ा हुआ है, सब आप लोगों ने पढ़ाया है सब चीज, ये सब है। लेकिन मतलब एक आप लोग साथ ना, तो उससे जब जुड़ जाइए तो मतलब बिल्कुल बहुत बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल मिल जाता है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है हमको। या तो आज एक्चुअली लगा कि मतलब कि ग्रुप भगवान ने एनर्जी मतलब कहा। मैटर करती है। हाँ, ग्रुप एनर्जी बहुत मैटर करती है। हाँ, मैं तो अपना पाठ मतलब वो कर रही थी, वो सब लेकिन बिल्कुल से हमने फोन खोला और देखा कि अरे बिल्कुल टाइम होने ही वाला है, मतलब 7:58 हुआ था समझ लीजिए। मैं तभी से ज्वाइन करके बैठ गई थी, मैंने कहा मैं जल्दी अरे से मैं वाह, पाठ करके कर। वेरी बहुत बहुत नाइस। धन्यवाद आप, बहुत थैंक यू मैम, अच्छी है थैंक यू कि सो आपके साथ मच। आप सबके बिल्कुल, साथ बहुत बहुत। थैंक यू। तो अब हम कल वापस इसी समय पे मिलेंगे, 8 o'clock। 8 से 8:30 और 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे शेयरिंग के लिए। जी जी। तो हाँ जी। या तो हम इसको कंप्लीट करेंगे 2-3 दिन और फिर आप उसको अपने एंड पे कंटिन्यू कर सकते हैं। या तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या मैं करती हूँ वो जो आप, वो जो स्टोन वाला नहीं बताया था वो हमेशा रख के, और अरे रात में वाह, उसको जरूर ग्रेटिट्यूड करती हूँ सबको, वाह मतलब बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ, मेरे साथ वो एक पीए लगा हुआ है उसको वेरी नाइस, वेरी नाइस। धन्यवाद है सबको। वो करना है, मालिक कभी भूल भी गई तो बिल्कुल से ध्यान आता है, अरे नहीं नहीं करना है, अरे देखो वाह, मैं बहुत गलत। बढ़िया। ये सारी तो आपके चीजें ना बहुत अच्छी होती हैं अगर हम अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं ऐसी किसी भी चीजों से। तो वेरी नाइस। जी चलिए ठीक है, जी। हम कल मिलते हैं इसमें, वापस से जी हील करेंगे, और वापस से हम एक नई जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप और। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड फिर मिलेंगे। थैंक्स।